Good evening everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss 15 botany questions and I have taken the questions from the app called SAM AI. This is a very different app where you can enhance your NEET preparation based on MCQ and test practice. First of all, let me tell you, I am telling you to just get a free trial of 30 days where you can access the MCQ and test and practice everything for 100% free for just 1 month. In that 1 month, if you see the improvement in your NEET score in the NEET test, then you can go for their plan where you will get 50 to 70% discount on my coupon code. Use that coupon code and get the 30 days of free trial, enhance your preparation, and then if you genuinely need their course, then go for it. You will get the MCQ, part test, full test, daily test, monthly test, everything to NEET 2025. MCQ and test the performance analysis NCERT based test with a twisted manner. This kind of things in present NEET trend can enhance your NEET preparation and give you a boost, the final boost that you need for NEET 2025. So make sure you download the app. Link is given below. And first of all, I want to tell you that here I am not taking the questions that are just having 4 options and तुमको बस मेमोरी के बेस पे उन क्वेश्चंस को टिक मार्क करना है. ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है. ऑब्वियसली पेपर में 50% क्वेश्चन वैसा होगा, बट दैट स्टफ यू कैन मैनेज बाय योर ओन. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे ए बी सी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, क्लास 12 का. सी है तुम लोग का फीमेल गैमेटोफाइट, ए है द हाइलम एंड बी इज द माइक्रोपाइलन. नाउ रीड द स्टेटमेंट्स. ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट होगा वो तुम लोग को मार्क करना है. रीड द स्टेटमेंट्स प्रॉपरली. ओव्यूल एंड द प्लेसेंटा आर जॉइंड टुगेदर बाय ए. मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रहा है, हाइलम का बात हो रहा है, राइट. इज इट करेक्ट? यस, ऑब्वियसली इट्स करेक्ट. A represents a junction between ovule and the hilum. How is this possible? Because the A is itself the hilum. So option number 2 is wrong. B represent the point of entry of pollen grain. यहाँ पे कौन सा होता है, micropylon. तो obviously option number 3 is correct. C represent a female gametophyte. Is it correct? Obviously correct. Before fertilization, C is a 6-cell structure. Is it correct? Wrong. It was 8 cell. So the option is option number B, 1, 3 and 4, right? सी इट्स ऑप्शन नंबर बी. एंड यहाँ पे जो है प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया है, मैंने समझा दिया. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पे क्या बताया है कि जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. एसएनपी ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का वो लाइन का क्वेश्चन है. एसएलपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. इस पे समझाने लायक तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है. जो क्वेश्चन में कुछ समझाने लायक नहीं रहेगा मैं उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. इट्स association question about the phenylketonuria, right? Phenylketonuria leads to mental retardation and the reason is phenylpyruvic acid and the derivatives are accumulated in brain. It leads to PKU. First of all, यहाँ पे मैं phenylketonuria बोल रही हूँ लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है. It's written as PKU. You have to know the full form of PKU. That's phenylketonuria. And phenylketonuria leads to mental retardation. But why? Because the phenylpyruvic acid and its derivatives get accumulated in the brain. Okay. ये ब्रेन पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है. देखो जो एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके करने का एक ट्रिक होता है. एसर्शन एंड रीजन जो स्टेटमेंट होता है उनके बीच तुम एक वर्ड लगा के देखो, दैट इज बिकॉज. अगर एसर्शन PKU leads to mental retardation, because वर्ड लगा के ऐसा रीजन को पढ़ो. phenylpyruvic acid and their derivatives are accumulated in the brain in PKU. Obviously this is the correct. So the option goes for both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation. A and B के बीच एग्जाम में जाकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा. एक ही चीज़ तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम बचाएगा, दैट इज बिकॉज जाके देखो अगर वो करेक्ट फिट हो रहा है देन इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड यहाँ पे जो है प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. इट्स ऑल डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. जस्ट गो एंड रीड द पैराग्राफ इन एनसीईआरटी इफ यू हैव सम काइंड ऑफ confusion. And it's a very important question and already PYQ में एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. The question is very simple. लेकिन पहले से अगर एक ना एक बार तुम अगर ये क्वेश्चन को नहीं करोगे तो एग्जाम में तुम लोग को इन सब में कंफ्यूजन होने में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. फर्स्ट सी ए एंड बी के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 यूनिट का. 3 यूनिट क्या है, वो जेनेटिक डिस्टेंस है, तुमको कुछ समझना है नहीं है. 3 यूनिट क्या है, एक डिस्टेंस है मान लो.
नाउ लेट्स सी बी एंड सी के बीच में 10 यूनिट का गैप है, राइट। बी एंड सी के बीच में 10 यूनिट का गैप है। अगर मैं सी को यहाँ लिख दूं उसके बाद बोल दूं कि इन लोगों के बीच में 10 यूनिट का गैप है, तब तो कोई गलत नहीं होगा ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुमको दो ऑप्शन देना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सी एंड ए के बीच 7 यूनिट का गैप है, इन दोनों के बीच 3 है। अगर मैंने इनको इस साइड लिख दिया, ए के ऑपोजिट साइड में मैंने सी लिख दिया, तो इज इट पॉसिबल टू हैव 7 यूनिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? नो, इट्स नेवर पॉसिबल। तो इसके लिए तुम लोग को सी को हमेशा इस तरफ देखना होगा, अगर सी एंड ए के बीच का डिस्टेंस कम बताया गया है, ये 7 बताया गया है, ये 3 बताया गया है, तो उसके बाद they are asking the order of the gene in the linkage map constructed at this manner। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ए बी या बी ए सी, जैसा भी लिखा हुआ है यहाँ पे बी ए सी लिखा हुआ है, राइट। मैंने इस तरफ क्या उस तरफ कर दिया, एक ऑर्डर में तुम बस देख लो, सी ए बी इज इट प्रेजेंट? नो, सी ए बी नॉट प्रेजेंट। बी ए सी देख लो, तो ऑप्शन नंबर शुड बी डी। ओके, ये इधर आ गया, मैं इसको लेके जाती हूँ, ऑप्शन नंबर शुड बी डी, तुम लोगों ने देख लिया होगा ना, राइट। सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे प्रॉपरली एक ऐसे प्लस करके कैलकुलेट करके दिखा रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझा दिया ना, कि तुम इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट पढ़ के तुम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद देख लेना, एक स्टेटमेंट पढ़ के लिख लेने के बाद देख लेना, सेकेंड के बाद थर्ड में क्या लिखा है वो देख लेना, तब तुम लोग को पता लगेगा कि ए बी लिखने के बाद सी को इधर लिखना है कि इधर लिखना है, एंड दैट विल क्रिएट द आंसर। ओके, नाउ लेट्स गो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कौन सा चैप्टर से है? ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो फ्लावर का बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से है। इन डाइथेकस एंटर द ट्रांसवर्स ग्रूव, दिस इज द पॉइंट। Was it a transverse group or a longitudinal? स्ट्रक्चर किस तरह का था? इस तरह का था ना, इस तरह का एक longitudinal ग्रुप था, तो ट्रांसवर्स ग्रुप लिख दिया, स्टेटमेंट ए नॉट पॉसिबल। नाउ pollen sac further developed to become microsporangia. Is it true? pollen sac further developed to become microsporangia. pollen sac से डायरेक्ट pollen ग्रेन बनेगा, microsporangia कैसे बनेगा? ये गलत है। Anther is a tetragonal structure. It's true. A typical angiospermic anther is bilobed and dithecous. तो फॉर मी आंसर कितना जाना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 and 4 कहाँ पे है? 3 and 4 ऑब्वियसली आंसर बी। देखते हैं, एम आई रॉन्ग और राइट? ओके, आई एम राइट। तो आंसर इज बी। प्रॉपर्ली यहाँ पे वही लिखा है कि ट्रांसवर्स ग्रुप नहीं होता, पॉलन सेक डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन डायरेक्टली डेवलप होता है। ओके, एंथर इज टेट्रागोनल, हाँ, 4 लोब स्ट्रक्चर एंड टिपिकल एंथर बाइलोब्ड एंड डाइथेकस, प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत तुम लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, एंड ऐसे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 1% है। ये कहीं कहीं होते हैं ना टेस्ट में, क्योंकि ये तो बस पार्ट टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट में भी तुम लोग कुछ अजीब सा अटूरा भटूरा सा क्वेश्चन मिलेगा जो कि तुम लोग को स्किप करके जाना है। वो क्वेश्चन में इस सोच में नहीं अटकना है कि मुझे पार्ट टेस्ट में ही 360 लाना है, नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे टाइम पे तुम्हारा या तो टाइम सेव करेगा या फिर टाइम खाएगा, एंड इस इतना ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं आएगा, आई होप सो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है पार्ट टेस्ट में, ये भी तुम लोग को जानना है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एमिनो एसिड हैव मैक्सिमम, क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम कोडन। मैक्सिमम कोडन क्या होगा ना, पहले एक्सप्लेनेशन समझा देती हूँ। देखो, ये जेनेटिक्स से है, जेनेटिक्स आई होप तुम लोगों ने अभी तक आधा तो एटलीस्ट पढ़ लिया होगा, राइट। जेनेटिक कोड इज दी जेनेट, मतलब जो है एक पर्टिकुलर कोड, मतलब मैं दिखाती हूँ, दी जेनेट मीनिंग दैट अ मल्टीपल कोडन कैन कोड फॉर द सेम एमिनो एसिड, मतलब ये एक है, ये बी है, ये सी है, ऐसा हो सकता है ये मल्टीपल कोडन एक सेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमिनो एसिड को ही कोड करे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है ये 2 टाइप के एमिनो एसिड को कोड करे, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म द जेनेटिक कोड इज डीजेनेरेट। ओके, यहाँ पे देखो कितने, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को समझाने की ट्राई करती हूँ, आई नो इट्स डिफिकल्ट। एक एमिनो एसिड है जो कि 5 कोडोन से ये बन रहा है, एक एमिनो एसिड 5 कोडोन बना रहा है, एक एमिनो एसिड कितने कोडोन बना रहा है, 7 कोडोन बना रहा है, तो किसका ज़्यादा हुआ कोडोन, रेस्पेक्टिव कोडोन किसका ज़्यादा हुआ, 7 का ज़्यादा हुआ। इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, ये और भी डिफिकल्ट करके 3 के मतलब टायर्ड में पूछ लिया। यहाँ पे अल्टीमेटली यही है कि ल्यूसीन
serine and arginine, they are among the amino acid with the highest number of codon. 6 amino acid से leucine बनता है, 6 codon जो है serine को कोड करता है, 6 codon arginine को कोड करता है, तो अल्टीमेटली उनका हाईएस्ट है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, यू जस्ट नो कि इसको स्किप करना है। एंड थोड़ा बहुत ये डीजेनरेट का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया ना, क्लियर हो गया, दैट्स फेयर इनफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। During the DNA packing in eukaryotic cell, non-histone chromosomal protein. See, that's a trap. अगर तुम लोगों ने प्रॉपर्ली वो चैप्टर नहीं पढ़ा एंड आधा अधूरा पढ़ा है, तुम लोग को पता है कि क्रोमोसोमल प्रोटीन वो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, तो नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन ऑब्वियसली यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? नॉट रिक्वायर्ड, इज इट? नो। जो पैराग्राफ में वो यहाँ पे जो हिस्टोन ऑक्टोमर दिखाया गया था, वो पैराग्राफ स्किप करते हुए लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, दैट इज non-histone chromosomal protein NHC, non-hostile chromosomal protein are also required for higher level of packaging. एक लेवल के बाद अगर हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग करना चाहो then you need non-histone chromosomal protein, right? So I hope that's clear. The option is D. Obviously the option is D. Now go for next question. Which of the following is not on a wall of microsporangium? Very easy question. I'm not gonna waste my time on this. This is very easy question. Epidermis, anothecia, middle layer, tapetum. इस पे क्या नहीं होता? Obviously वो जो sporogenous tissue है वो यहाँ पे wall पे नहीं होगा. Very simple question. Consider the following process of double fertilization. Which of the statement is accurate describing the sequence of event? देखो, हम लोगों को पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये वाला चीज डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो एक लाइन है ना, ये वाला लाइन देखो, द एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड व्हाइल, ये एग्जैक्टली लाइन एनसीईआरटी में है, पता है, व्हाइल द अदर फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि ट्रिपल फ्यूजन है, तुम लोग को पता है। यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया कौन सा आगे होगा कौन सा पीछे होगा, लेकिन व्हाइल द अदर फ्यूजेस विद अदर, तो अल्टीमेटली यू कैन से द टेक्स्ट यहाँ पे इसीलिए एम्फेसाइज किया गया है, एनसीईआरटी के उस टेक्स्ट को एनालाइज किया है एक्सपर्ट्स ने, एंड दे टोल्ड दैट द टेक्स्ट स्पेसिफिकली मेंशन दैट दिस फ्यूजन इवेंट अकर्स साइमल्टेनियसली, डबल फ्यूजन में साइमल्टेनियसली एंड सिंक्रोनाइज प्रोसेस पे चीजें होता है, तो आंसर विल बी, आंसर कौन सा होगा देखो, बोथ द स्पर्म न्यूक्लियर फ्यूजेस साइमल्टेनियसली विद द रेस्पेक्टिव टारगेट्स, जो कि रेस्पेक्टिव टारगेट्स है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑब्वियसली ऑप्शन आंसर नंबर B. Now see the next question. It's from genetics and a very conceptual question. RNA polymerase associate transiently with Rohr factor to initiate. No. It's wrong because ये क्या काम करने के लिए यूज होता है, वो टर्मिनेट करने के लिए। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, इज इट ट्रू? ऑब्वियसली वहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड कोई बाउंड्री नहीं होता, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हर चीज जो है एक ही कंपार्टमेंट में होगा, तो ये स्टेटमेंट ये करेक्ट है। आरएनए पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, नो इट वाज फॉर आरआरएनए, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट, ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग, 1 रॉन्ग। When hnRNA undergoes capping process, adenylated residue 100% गलत ही होगा, क्योंकि adenylated residue कहाँ पे होता था, वो टेलिंग में होता था। hnRNA is the precursor of mRNA, ट्रू। तो ऑप्शन कौन कौन सा ट्रू हुआ, एक तुम्हारा 5, एक 5 और एक 2, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट स्टेप जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है वही बताया गया है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट assertion region based, देखना ओके। Geitonogamy is a functional autogamy. Geitonogamy is functionally autogamy. Is it true? Is it can be true? 100% गलत। Geitonogamy is functionally जो है क्रॉस पॉलिनेशन है, बिकॉज यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है। सेम ही प्लांट के 2 फ्लावर है, समझ रहे, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हुआ, पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज हुआ, तो अल्टीमेटली इट शुड बी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, बात यह है कि दोनों फ्लावर का जेनेटिक्स अलग है, तो it's genetically autogamy. The assertion false हुआ, assertion is false, both assertion region is false, then you have to decide between these two statements. Geitonogamy involves the pollination between the flowers of the same plant, तो obviously ये question ये गलत हो गया, statement C is true because region is correct, assertion is wrong. So that's the simple question. Now go to this question. If you have not learned this thing directly from NCERT, then I think मुझे ये solution part में skip करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे exactly वो
प्रॉपर्टीज दिया गया है जो कि पॉलिनेशन में होना चाहिए सो दैट दे कैन बी स्पेसिफिकली फॉर द पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग एजेंट। वाइंड के लिए कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, वाटर के लिए कौन सा, इंसेक्ट के लिए कौन सा, ये बहुत ही थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट का चीज है, एक बार कर लोगे तो हो जाएगा। तो मैं सोल्यूशन पार्ट पर स्किप करती हूँ। देखो यहाँ प्रॉपरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विंड पॉलिनेशन, विंड में तुम्हारा क्या होगा, चीजें उड़ के जाएगा, तो इट शुड बी लाइट फॉर गोइंग दैट, नॉन स्टिकी, कहीं पे स्टिक नहीं होना चाहिए। दिस कैरेक्टर अलाउड द पॉलन ग्रेन टू इजीली डिस्पर्स बाय विंड। एंड एक्सपोज स्टेमन भी होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिखाया हुआ है, राइट, एक्सपोज स्टेमन का, एक्सपोजिंग द स्टेमन इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलन ग्रेन बीइंग कैरिड बाय द विंड। सिंपल है। वाटर पॉलिनेशन, वाटर में क्या होगा, अगर जो है जो पॉलिन ग्रेन गया वो अगर वाटर से वेट होकर डैमेज होगा तो वो कैसे पॉलिनेशन करेगा, बताओ। तो म्यूसिलेजिनस कोटिंग इज द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज इट हेल्प्स द पॉलन टू फ्लोट ऑन वाटर एंड बीइंग डैमेज होने से बचाएगा, क्योंकि वहां पे म्यूसिलेजिनस कोटिंग रहेगा। डेंगलिंग रिबन लाइक प्रोटीन, ओके, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, वाटर करंट से फ्लोट करने के लिए, मूव करने के लिए, वाटर करंट उसे प्रॉपरली लेके जाए, वो डेंगलिंग रिबन शेप इस पे हेल्प करेगा। स्टिकी पॉलन, दिस हेल्प्स द पॉलन ग्रेन टू एडहेयर टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। कहाँ पे आ गए मैं, ओके, नाउ दिस इज द इंसेक्ट पॉलिनेशन। वेट, ये क्या हो गया, हाँ, इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होगा, इंसेक्ट के बॉडी में लेके जाना है तो बॉडी में एडहेयर होने के लिए उसका स्टिकी नेचर होना चाहिए, जो कि विंड पॉलिनेशन से बिल्कुल ही उल्टा है। एंड फाउल ऑर्डर होना चाहिए, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है एंड पीवाईक्यू भी ऑलरेडी आ चुका है कि फाउल ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि फाउल ऑर्डर जो है दिस काइंड ऑफ पॉलिनेटिंग इंसेक्ट को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर द आंसर मैचिंग इज दिस, यू हैव टू जस्ट लर्न दिस थिंग्स, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुका है। इफ यू हैव नॉट लर्न दिस देन गो फॉर इट। Now this is again a assertion reason based question। क्या लिखा हुआ है, the pollen grain can withstand the action of the strong acid and alkali। हाँ, ये तो है, हमें पता है क्योंकि वो प्रिजर्व भी किया जाता है। बट द पॉइंट इज इनसाइड द pollen grain, ओके, यहाँ पे एक कुछ है, हाँ, एसिड एंड एल्कली, बस ये लिखा हुआ है। इनसाइड नहीं, सॉरी, इंटाइन ऑफ द pollen grain is made up of complex carbohydrate like cellulose and pectin। पहले तुम मुझे ये बताओ, is both the statement are true? Obviously pollen grain can withstand a strong alkali and acid। and intine जो है उसके नेक्स्ट पैराग्राफ का जो सेकंड लाइन है उस पे लिखा हुआ है कि intine बना किससे होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक सेलुलोज एंड पेक्टिन। बट is there any correlation between the assertion and reason? Obviously not, because pollen grain withstand करता है strong acid and alkali, it's because of the exine, राइट, जो कि बनता है किससे, स्पोरोपोलेनिन से। लेकिन यहाँ पे वो पर्टिकुलरली चीज मेंशन नहीं है, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा, बोथ द assertion and reason are true but it's not the correct explanation। let's see the solution। हाँ, यहाँ पे वही लिखा गया है, it's true but it's not the correct explanation। नाउ ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज द ट्रू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट, ये नीचे वाला नहीं देखना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। Which of the following diagram represent the independent assortment? Independent assortment कौन सा डायग्राम शो करता है, just see the page of NCERT, वहाँ पे डायरेक्टली ये दो क्वेश्चंस, दो डायग्राम मेंशन किया हुआ है। दिस इज अ क्वेश्चन जस्ट टू कंफ्यूज यू, देयर इज नॉट मच कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम दिया है, डायग्राम में थोड़ा बहुत ही बस डिफरेंस है, जो कि इतना तुम लोग का एग्जाम में देखने में ध्यान में नहीं आएगा, बट ये ध्यान रखो कि दो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है एंड दोनों एग्जैक्टली सेम है। ऐसे क्वेश्चंस बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में बीच बीच में जो आ जाता है। द आंसर इज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली गिवन है एनसीईआरटी। पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को जेनेटिक्स में ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि इंडिपेंडेंटली किस तरह से वो असॉर्ट होता है। वो देखो, ये दो था, मतलब एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड अटैच्ड है एंड ये जर्म सेल में आके एक एक में डिवाइड हो गया एंड ये इंडिपेंडेंटली हुआ है। इट डज नॉट मैटर कि कौन सा पार्ट किसके साथ जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो मैं यहाँ पे नहीं समझा सकती, मैं बस ये बोल रही हूँ कि इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं सोचना, बस बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। यहाँ प्रॉपर्ली पूरा स्टेप्स एक्सप्लेन किया है। आई डोंट थिंक सो कि स्टेप्स यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा, अगर तुमने टीचर से समझ लिया तो हो गया। So I hope this video will help you a lot and thank you. The botany का questions are finished. I will discuss the zoology questions tomorrow. जो 15 question इस वाले टेस्ट में आया था and also ऐसा टेस्ट दिसंबर के एंड में भी एक होगा. It will be a free test and all the qualities of the test and
द फीचर्स द टेस्ट में जो मेरे कूपन कोड से जाएगा एंड जो टॉप 3 स्टूडेंट होगा दे विल गेट द फ्री स्कॉलरशिप ऑफ द ऐप, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो आई होप यू विल स्टडी अ लॉट एंड गिव द टेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपना पढ़ाई अच्छे से करो एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड रिव्यू जरूर देना।